مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ رنگ کسے کہتے ہیں؟ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ درخت کیسے ہوتے ہیں؟ پھول کیسے کھلتے ہیں؟ امی ابو کیسے ہنستے ہیں؟ باجی کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے گھر کے سب رستے یاد ہیں، مگر میں نے کبھی رستے نہیں دیکھے، گھر نہیں دیکھا۔ لوگ مجھ پر ہنستے ہیں تو سمجھتے ہیں مجھے آواز نہیں آتی، لیکن میں صرف دیکھ نہیں سکتا، میں سن سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، بول سکتا ہوں۔ آپ کو اتنا کہنا تھا، مجھ میں کچھ کمی نہیں، بس میری نظر نہیں۔ شیر بہادر 2-3 آیتیں سیکھ لیں، مسجد میں بیٹھ جائیں اور بس کوئی 5-10 روپے دیں گے، آپ کا تو کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس بات میں میرے دل کو بہت ٹیس پہنچا۔ اس طرح تو کوئی کسی کے مرنے پہ بھی نہیں روتا جس طرح وہ میرے نظر چلے جانے پہ رو رہے تھے، اور مجھے تب لگا کہ پتہ نہیں یار لائف ہیز اینڈیڈ اور what actually happened۔ یہ بیچارہ نابینا شخص نابینا پیدا ہوا ہے حنیف صاحب کے گھر، اور پتہ نہیں والدین کی کون سی غلطی ہے جس کی سزا اس بیچارے کو مل رہی ہے۔ جی یہ تو ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، کیونکہ شی کین ناٹ رائٹ، پہلے انہیں یہ خامیاں نظر نہیں آئیں، اب آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اگر اسٹوڈنٹس کو ہی میری وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر مجھے جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ایتھے سجاکھے نہیں پڑھتے، تسی نبینیاں نو پڑھا کے کی کرنا ہے؟ یعنی یہاں پہ نظر والے لوگ نہیں پڑھتے، آپ نے نبینا کو پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ لوگ اسٹیٹلی آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر لے دیں، ہمیں دکان بنا دیں، کوئی پلاٹ ہمارے نام کر دیں تو ہم آپ کی بچی سے شادی کر لیں گے۔ میری پھوپھو لوگ کہتے تھے ہم دیکھیں گے جب یہ پڑھ کے کچھ کر کے آئے گی، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹیچرز جو ہیں میرا مذاق اڑاتے کہ تم ڈرامے کرتے ہو، تمہیں نظر آتا ہے، اسٹوڈنٹس مذاق اڑاتے تھے، سو میں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ پاکستان میں نابینا افراد بے پناہ مسائل سے دوچار ہیں، پرورش سے لے کر تعلیم تک، موبلٹی سے لے کر شادی تک، سماجی رویوں سے لے کر تعلیمی میدان تک ہر جانب مشکلات ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں معذوری کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہو، وہاں معذور افراد کی بحالی اور فلاح کی فکر کس کو ہے؟ نابینا افراد کے حوالے سے جب ہم معاشرے کے رویے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اس میں سب سے پہلے والدین کے رویے کی بات آتی ہے۔ والدین کا رویہ بھی ایسے بچوں کے بارے میں بہت حوصلہ افزا نہیں ہوتا۔ بلائنڈ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، when a blind child is born، پیرنٹس اس کو بالکل یوز لیس سمجھتے ہیں اور وہ اس کو بالکل ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ انسان نہیں ہے۔ نابینا افراد کی تعلیمی مشکلات بھی بے شمار ہیں۔ ریاضی کا پرچہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ سبجیکٹ سلیکشن بہت محدود ہے، صرف آرٹس کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ نابینا افراد کی جو تعلیم میں ہے اس کی جو مشکلات کی بات ہے تو اس میں کافی ساری نصابی مشکلات بھی ہیں ان کے لیے، خاص طور پہ جو میتھمیٹکس کٹس وغیرہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، جیومیٹری کے لیے جو ایک اسپیشل کٹس پہ نابینا بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ پہنچتے ہیں تو ان کو بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو اب بھی الاؤڈ نہیں ہیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اگر ان میں سے کچھ بچے پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آگے پروفیشن بہت محدود ہے۔
टीचिंग और केन वर्क के अलावा ये माशरा उनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ कुर्सियां बुनना या ब्रेल टीचिंग सिखाई जाती है। हमें वक्त ने यह सबक सिखाया है कि नाबीना अफराद की तालीम और तरक्की का हल टेक्नोलॉजी में पोशीदा है। कंप्यूटर की तालीम उनके लिए हमेशा नई राहें खोलती है। अगर एक ब्लाइंड विजुअली चैलेंज जो बच्चा है वो अगर कंप्यूटर के यूज़ कर सकता होगा उसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर किसी सहारे के इंडिपेंडेंटली वो जो है कंप्यूटर के ज़रिए अपने काम कर सकता है। तालीम के अलावा खेल के मैदान भी इन बच्चों के लिए बंद हैं। न सहूलियात, न ग्राउंड, लेकिन इसके बावजूद ये बाकमाल बच्चे अपने टैलेंट को मनवा ही लेते हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चियाँ बहुत अच्छे पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे इवेंट विन करके आती हैं और यहीं पे ही खेलते हुए क्रिकेट के बहुत सारे कैंपस से सिलेक्शन होते हुए हमारी 3 बच्चियाँ जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं और नेशनल मैच की सीरीज़ जो है नेपाल के साथ खेली भी हैं। आप कम्युनिकेशंस ने यूएस एम्बेसडर फंड की आनत से पंजाब और केपीके में एक प्रोजेक्ट अवर विजनरी चैंपियन का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट के तहत इन 2 सूबों में ऐसे नाबीना अफराद के कवायफ मंगवाए गए जो जिंदगी में कोई कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। करीबन 100 से ज्यादा लोगों के कवायफ में से कुल 8 लोगों का इंतखाब इंतहाई सख्त मेरिट पर किया गया। चैंपियंस के इंतखाब में तालीमी काबिलियत के अलावा उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों और समाजी बहबूद के लिए किए गए कामों जैसे नकात को भी अहमियत दी गई। सिनफी तवाजुन को मद्देनजर रखते हुए 4 नाबीना खवातीन और 4 नाबीना मर्दों को मुंतखब किया गया। शेर बहादुर आफरीदी, सलमान खालिद, सुलेमान अरशद, डॉक्टर राजा आमिर हनीफ, साइमा अरशद, इरम शब्बीर, शमसा कंवल और रुबीना शाद को चैंपियन का खिताब दिया गया। इन 2 सूबों में से कुल 6 स्पेशल स्कूलों का इंतखाब किया गया। हर स्कूल में एक नाबीना खातून चैंपियन और एक मर्द नाबीना चैंपियन से इन स्कूलों के नन्हे तलबा के सामने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने की दरख्वास्त की गई, ताकि इन स्कूलों में जिंदगी से मायूस बच्चों को रोशनी की कोई किरण नजर आए, इनके हाथ उम्मीद का कोई सिरा आए। पाकिस्तान में नाबीना तलबा का स्कूलों में तालीम हासिल करना बहुत दुश्वार है, इसलिए कि ना हुकूमतों की तरफ नजर जाती है, न समाजी इदारों को इन मुश्किलात का दुरुस्त अंदाजा है। इन तमाम हालात के बावजूद हमारे चैंपियंस ने इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया और ना सिर्फ ये कि अपने लिए बहुत सी कामयाबियां समेटी, बल्कि मुल्क के लिए भी सरमाया इफ्तिखार बने। पाकिस्तान में कई स्पेशल स्कूल ऐसे हैं जहां नाबीना बच्चे कई साल एक ही क्लास में रहते हैं। उनको तालीम नहीं दी जाती, बस उनका वक्त गुजारा जाता है। ऐसे माहौल में जब इन बच्चों ने हमारे नाबीना चैंपियंस की बातें सुनी तो उनके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। वो शशतर रह गए कि वाकई क्या कोई शख्स बीनाई ना होने के बावजूद इतने कारनामे कर सकता है? क्या माशरे का रवैया किसी शख्स की माजूरी के बावजूद भी बदल सकता है? सच तो ये है कि इन नाबीना चैंपियंस ने इन बच्चों को कोई किताब नहीं पढ़ाई, बल्कि जिंदगी का दर्स दिया। पिछले 3 सालों से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज एन इंग्लिश लेक्चरर काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एसोसिएट प्रोफेसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। इस वक्त मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब और स्कूल ऑफ इंक्लूजन के नाम से चला रहा हूँ। 4 दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया और मैं डायरेक्ट सिलेक्टी हूँ BPS 18 में। मैं कोहपेमाई की भी बहुत शौकीन हूँ। मैंने 2 चोटी सर कर ली हैं, एक कार्नोस वाद की, दूसरी मंडेर कोहार्ट की। मुझे जापान से
डस्किन लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स करने का मौका दिया गया और मैं अभी तक पाकिस्तान की वाहिद खातून हूँ जिसे ये एजाज़ हासिल हुआ। मैंने एमफिल किया सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में और आज मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक आला ओहदे पे काम कर रही हूँ। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MA उर्दू किया और अब वहीं से MPhil की डिग्री हासिल कर रही हूँ। जो मुश्किलात, जो रुकावटें आपके रास्ते में आने वाले कल आएंगी, उसके लिए आज से अपने आप को तैयार करना है। सिर्फ हिम्मत और हौसला ये क्लीशे वर्ड्स हैं। इससे आगे निकलकर प्रैक्टिकल स्टेप क्या होंगे आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। एक फ़र्द के तौर पे नहीं, इस माशरे के एक फ़ाल शहरी के तौर पर, एक बड़े नाम पर, कि पूरा पाकिस्तान आप पे फ़ख्र करे, पूरी दुनिया आप पे फ़ख्र करे। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, आप में से हर बच्चा जो अपनी नशिस्त पर बैठा है वो इतना टैलेंटेड है, वो इतना ज़हीन है, वो इतना काबिल है कि आप सारे लोग दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस नाबीनाई को भुलाकर अपने टैलेंट को मनवा सकते हैं, एक नई दुनिया तख्लीक कर सकते हैं। यूएस एम्बेसडर फंड की आनत से प्रोजेक्ट अवर विजनरी चैंपियन 6 स्कूलों और 8 चैंपियंस पर मुहित था, लेकिन ये काफ़ी नहीं। पाकिस्तान में हर नाबीना बच्चे को कामयाबी और कामरानी की ये कहानी सुनने का हक है। इन नाबीना बच्चों के मासूम जहनों में ये सोच पैदा करना ही इस प्रोजेक्ट का मकसद था। यही इन 8 चैंपियंस का असल काम था। यही इस सारी काविश का खुलासा था कि हर नाबीना बच्चा मायूसी के अंधेरों से निकले और खुद आगे बढ़कर पूरे हौसले से इस माशरे को बताए कि मैं हूँ चैंपियन।